Dear students, today we will discuss the topic boiling. Boiling and evaporation, which we did in the last lecture, is similar, in which liquid changes into vapors. But there is difference between evaporation and boiling with the phenomenon, because evaporation is a surface phenomenon. इवेपोरेशन के केस में लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है, बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वेयर एज बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिनन from bulk, from the body part, liquid also involved in case of boiling. Evaporation is the process which takes place at room temperature, at any temperature, at all temperatures. But boiling takes place at a definite temperature. Boiling is the process which takes place at a definite temperature, which is called boiling point. This is the major difference between evaporation and boiling. Students, boiling point in lower classes just हम पढ़ लेते हैं कि the temperature at which liquid boil, temperature at which liquid changes into its vapors. But the exact definition of the boiling point is temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure. Temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure. It means boiling depends upon atmospheric pressure. As atmospheric pressure changes from place to place, in plane atmospheric pressure is more, but at higher altitude like शिमला, लद्दाख और बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द प्लेन एरियाज. सो वहां पर बॉइलिंग जो है दैट विल टेक्स प्लेस इजीली. बॉइलिंग एट हायर अल्टीट्यूड टेक्स प्लेस इजीली बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस. सो इजीली वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द atmospheric pressure on those areas. So that's why boiling depends upon atmospheric pressure. Now there is an important question related to boiling, that why does the temperature of the boiling liquid remain constant even though heating is continued. हमें पता है boiling point water का है 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हम वाटर को बॉईल करना शुरू करें तो धीरे धीरे उसका बॉइलिंग पॉइंट, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक. पर 100 के बाद वो 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. 100 पर वो स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. उसके बाद क्यों नहीं बढ़ता? बॉइलिंग पॉइंट जब किसी भी लिक्विड का आ गया तो उसके बाद टेम्परेचर जो है दैट रिमेन कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज एट द केस ऑफ बॉइलिंग liquid changes into vapors, because molecules are strongly binded by the attractive forces which hold them together. तो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट हीट एनर्जी गोज टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स. जो हम एनर्जी देंगे दैट एनर्जी इज यूज टू एस्केप द मॉलिक्यूल ऑफ दैट लिक्विड इनटू vapors, and which have to overcome the attractive forces of that liquid, because liquid के केस में attractive forces होती हैं. अब उनको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो वेपर्स में लिक्विड चेंज होगा. तो एनर्जी जो हीट एनर्जी है दैट इज यूज टू चेंज द लिक्विड इनटू वेपर्स. देयर इज नो चेंज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है वो जिस मॉलिक्यूल की ज्यादा हुई वो चला गया,
तो पिछला जो मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, फिर हमने हीट किया, फिर मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड देन जो प्रीवियस मॉलिक्यूल है इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर आल्सो decreases and the temperature of liquid does not change, so that's why liquid का temperature जो है at its boiling point will remain constant. So this is also an important question. Next topic is surface tension. What is surface tension? If we look at here in this diagram, the liquid drop which is at the surface is under imbalanced forces. इसके ऊपर जो है गैसियस स्टेट है, एयर है, और नीचे जो है लिक्विड है. तो एयर की जो फोर्सेस अट्रैक्शन या रिपल्शन की हैं वो लिक्विड के इक्वल तो होती नहीं है. इसको नीचे से लिक्विड खींच रहा है और ऊपर से एयर जो है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है. ओके, बट जो लिक्विड की ड्रॉप इन द बल्क है, इन द बॉडी है, वो सराउंडेड विद द लिक्विड ड्रॉप्स और उसकी फोर्सेस बैलेंस्ड है. बट द लिक्विड एट द सरफेस इज अंडर इम्बैलेंस्ड फोर्सेस. फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड. यहां फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है. इस कारण ये लिक्विड जो है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये एस्केप हो जाता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में बाइंड हो जाता है विद द लिक्विड और सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी. तो द मॉलिक्यूल विच इज एट द टॉप एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज अंडर द टेंशन, ऑलवेज द इम्बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द drops of the liquid which is present at the top. So this type of forces is known as, this types of forces are known as surface tension. Force, what is surface tension? हमें definition लिखनी है पहले. Force per unit length acting perpendicular to the tangential line drawn on the surface of liquid. अगर हम सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर एक टेंजेंशियल लाइन, पैरेलल लाइन जो टच करे लिक्विड की ड्रॉप को, उसके ऊपर एक टेंजेंशियल लाइन प्लॉट करें तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही है, दैट परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन अ टेंजेंशियल लाइन ड्रॉन ऑन इट, दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज सरफेस टेंशन. नाउ सरफेस टेंशन हैज यूनिट force per unit distance, mean dyne per centimeter और न्यूटन पर मीटर. बिकॉज जो सरफेस टेंशन है वो क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस सिस्टम में dyne per centimeter. If we increase the temperature, surface tension decreases. Surface tension depends upon the nature of liquid. If there are, since surface tension of a liquid is due to intermolecular attractive forces, the magnitude of surface tension is a measure of intermolecular attractive forces. When attractive forces between the molecules are large, the surface tension is large. More the viscosity, more viscous the liquid, more will be the surface tension. Now question arises, why drop of liquid always has spherical in shape? ड्रॉप ऑफ लिक्विड spherical होती है. आपने बोलना है हम ड्रॉप तो ऐसे होती है, एलिप्टिकल ऐसी ऐसी, बट ये एलिप्टिकल इस कारण होती है बिकॉज इस ड्रॉप को ग्रेविटी अपनी ओर, अर्थ जो है ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, तो दैट्स व्हाई इट विल एक्वायर द एलिप्टिकल शेप. बट ओरिजिनल शेप ऑफ ड्रॉप इज spherical. व्हाई? Because due to surface tension, inner side of that drop attracted due to the liquid and outside air will apply the surface tension. Now this drop try to acquire the minimum area. सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फीयर का. तो that's why liquid drop is spherical in nature due to surface tension. आपने डायरेक्ट भी लिख सकते हो
कि ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैज स्फेरिकल शेप बिकॉज ड्रॉप ऑफ लिक्विड ट्राइड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का. दैट्स व्हाई इट इज स्फेरिकल. अब जो आपने देखा होगा ग्लास हम आजकल यूज करते हैं, टेबल पे भी ग्लास लगा लेते हैं, मिरर्स में भी हम यूज करते हैं, विंडोज में भी ग्लास पेन यूज करते हैं. तो वो ग्लास के जो एज हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं. वो स्मूथ एजेस कैसे हम कर सकते हैं? जब हम हीट करते हैं ग्लास को. ऑन हीटिंग ग्लास मेल्ट एंड सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू टेक राउंडेड शेप. जो लिक्विड जो है वो क्या करता है? स्फेरिकल शेप, राउंडेड शेप को एक्वायर करना शुरू कर देता है एट द एजेस. दिस मेक्स द एज स्मूथ. दिस इज नोन एज फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास. टू स्मूथ द edges of glass we heat them, and upon heating the glass melt and try to acquire the spherical shape or try to acquire the rounded shape. That's why this is known as fire polishing of glass. Another example of surface tension is capillary action. What is capillary action? Which takes place in case of plants. Automatically water flows from bottom to the top through the roots, because वो छोटे छोटे रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं. थ्रू देम ऑटोमेटिकली लिक्विड गोज थ्रू द बॉटम, थ्रू द रूट्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द प्लांट. दैट इज आल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन. एंड लिक्विड बेट्स द थिंग्स. लिक्विड जो है वो चीजों को गीला करता है. ठीक है, अपने आप जो विक ऑफ एन ऑयल लैंप होती है, ऑयल लैंप की जो बत्ती होती है उसमें से जो ऑयल अपने आप ऊपर जाता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.